नाइन रोज टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे प्रोग्राम आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं और यूट्यूब पे भी, और इसके अलावा मुबारक टीवी इंटरनेशनल पे भी। हमारे साथ आज फिर मलिक साहब हैं। मलिक साहब एक और नुस्खा लेके आए हैं, पूछते हैं क्या जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी। मैं अपना मुबारक साहब, मेरा पूरा नाम मलिक ताहिर महमूद है। मलिक ताहिर महमूद साहब का तारफ भी करवा देते हैं। मलिक साहब थोड़ा सा आप खुद ही तारफ करवा दे अपना। मैं जनाब लाहौर का रहने वाला हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਰਬੂਏ ਵੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਰੋਡ हाँ ਤੇ। जी, खालिद मलिक, खालिद महमूद मलिक मेरा हाँ भाई जी। ਸੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਵਾਤ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਾਰਫ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਲੈਣਾ। ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਸੀ, 92 ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 93 ਚ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਏ ਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ। ਅੱਛਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਐਨਕ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਸੁੱਕੜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਪਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੇ ਐਨਕ ਕੋਲੇ ਵੇਖ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਚ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਸਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਯਖ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 11 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਠੰਡੇ ਯਖ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ। ਮੈਂ 21 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਚ ਪੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਆੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਰਾਜ ਚ ਪਈ ਐਨਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉਹ 1-2 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
कहते की मैथड इस्तेमाल किया तो मैं उन्हें दसिया भी यह मैथड इस्तेमाल किया। दोवे प्यो हस पे ते मैं आ गया। ਉਹਦੇ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਇਹ ਸੀ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਸਾਵਾਤ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਐਸੀ ਅਖਲਾਕੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਖਲਾਕ। ਆਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਨੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ 84 ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਝੱਲਿਆ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਲੋ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਉਲਕ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਸਾਫੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ? ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ 11 ਦਫਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 3-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਖੁਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਰਦ ਸ਼ਰਦ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵੀ 2-4-5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥਰਮਾਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਰੱਖੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਥਰਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ, 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਥਰਮਾਸ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਠੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੈ। ਪੀਣਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮਸਲਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਵੇ।
फजे दे पावे खांदे, फजे दे पावियां तो नहीं आदत पई दी। फजे दे पावियां दा क्या बात सी, फजे दे पावियां दी मैं ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇਟ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੂੰਘੇ ਚ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਚ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਬਰਾਂ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਵਾਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭੇਜਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ WhatsApp ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਇਹੋ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਮਲਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ 9 TV ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना ना भूलना, अपना ख्याल रखना। मिलेंगे, बहुत शुक्रिया मलक साहब, अल्लाह हाफिज जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने वहां पे देखा, पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं, जो सियासतदान है या दूसरे लोग हैं, ये फिर ब्लैकमेल आपके ख्याल में करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पैसे फिर लेके तो गायब हो जाते हैं, ये बात हो रही थी। तो यही हालात आजकल अवाम की है कि ये मोबाइल से लोगों की वीडियो बना के जो मीडिया वाले वो भी ब्लैकमेल कर रही हैं बंदे, खवातीन को, लड़कियों को। तो ये तो सिलसिला बड़ी दूर तक फिर निकल गया ब्लैकमेल का वहां पे। सर तकरीबन ये ब्लैकमेलिंग तो हमारे मुल्क में ना, यानी एक ना फैशन सा बन चुका है। यानी लोग लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सियासतदान, छोटे सियासतदान बड़े सियासतदानों को ब्लैकमेल करते हैं। जिसकी किसी के पास कोई ब्लैक मूवी होती है ना, वो उसको ब्लैकमेल, आवाज जरा ठीक कर जाता है ना, तो वो उसको, वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला तो तकरीबन आम है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज बहुत आम है, सियासतदानों से लेकर तो गरीब अवाम तक ये चीज आम है इस मुल्क में। तो ये जिस तरह उलमा, जिनको जब तक पकड़े नहीं जाते कहते ये बहुत बड़े उलमा थे, और जब वो पकड़े जाते तो कहते ये सबसे बड़ा बदकार था। तो आपके ख्याल में ये अंडरग्राउंड, ये उलमा की भी यही गेम चल रही होगी? कुछ ऐसे भी वाकयात जरूर होंगे मेरे ख्याल में। सब कुछ खिचड़ी पकी हुई है इनके आपस में, सब कुछ इनको पता होता है क्या करना है। बाद में ये लोग इकट्ठे बैठ के एक टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, टीवी चैनलों पे एक दूसरे को ये गालियां देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम के बाद इकट्ठे ये लोग खाना खाते हैं। यही हाल मौलवियों का भी है। अच्छा, आप एक आम शहरी है, ये बताइए कि ये कहते हैं जी पार्लियामेंट में दयानतदार लोग जाते हैं, 62-63 जो भी वहाँ के कवानीन है, जो भी वो उसके मुताबिक होना चाहिए। आपके ख्याल में कितने पाकिस्तान में जो लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं वो दयानतदार होते हैं? मैं तो तकरीबन ना देखे ना, तो मेरी इतनी ज्यादा उम्र है तो ना इतना तजर्बा। मैं अपने तजर्बे के मुताबिक एक बात कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट हाउस में बैठने वाला एक भी बंदा अगर बख्शा जाएगा ना, तो हम तो फिर समझे कि आराम से बख्शे जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने। अच्छा, कुछ दिन पहले शायद आपने देखी हो कि वो वजीर बल्दियात जो सिंध के हैं, वो एक लड़की डांस कर रही है, उसके सर पे शराब का गिलास है, और वो शराब का गिलास है। ये हाँ जी, ये तकरीबन ये पिछले साल की मूवी है, मैंने देखी हुई है। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह यहाँ आपके नून लीग के भी देखे गए जो ये मुजरे शुजरे कराते हैं, डांस पार्टियां चलती है, सब कुछ ये वीडियो पे, सोशल मीडिया पे आम है ये चीजें, फेसबुक पे आती हैं लेकिन गायब हो जाती हैं बाद में।
नहीं, लेकिन ये बताइए सारे कि ये लोग तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की अवाम के जो नुमाइंदे हैं, जो 22 करोड़ लोगों ने हमें वहां भेजा मुंतखब करके, तो हम इनकी तकदीर बदल देंगे, हम इनके हालात बदल देंगे, हम इनकी जिंदगियां बदल देंगे, मगर ये तो अपनी जिंदगियों में मस्त हैं, नशे में चूर है, तो ये किस तरह जिंदगियां बदलेंगे अवाम की? आपको बात कह रहा हूँ कि देखिए, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि अगर ये पार्लियामेंट में एक भी बंदा अगर बख्शा गया ना, तो समझ ले कि पूरा पाकिस्तान बख्शा जाएगा उनके पीछे। जितने के करप्ट ये लोग हैं, इन्होंने गरीबों का पैसा चूस चूस के तमाशबीनी कर ली, आउट ऑफ कंट्रियों में घर बना लिए हैं, बस छोड़ ही दे इन लोगों के। तो जितनी के करप्शन इन लोगों ने किया, अवाम को इन्होंने ये समझ ले कि अवाम के कातिल हैं। पाकिस्तान में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो कर्जई होता है, वो कर्जई इनकी वजह से होता है, पैसे इन्होंने लिए हैं, कर्ज अवाम को अदा करना पड़ रहा है उसका। अच्छा, अगर इन लोगों ने कोई खिदमत की हो, जिस तरह यहाँ नवाज शरीफ है बाहर जाता है, उसके बेटे बाहर जाते हैं इंग्लैंड में भी, तो उसे चोर चोर चोर, फिर इनको गुस्सा भी चढ़ता है। अब चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या आपके ख्याल में बोलना चाहिए? तो चोर को चोर ही बोलना चाहिए, मोर तो बोल नहीं सकते। तो चोर ही है ना सर, ये चोर ही है। तो इमरान खान की हुकूमत में क्या, ये भी सब चोर लुटेरे हैं। आपको क्या बताएंगे, पाकिस्तान में महंगाई किस हद तक पहुंच गई है। जो सामान घर का, मैं तकरीबन 7-8 हजार में राशन लेके आता था, कल मैं घर का राशन लेने गया हूँ, इकट्ठा ही ले आया तो एक माह का, तो 13 हजार का आया, जो मैं 8 हजार में लेके आता था। इसका मतलब काफी चीजें जो है उनकी प्राइस ऊपर चली गई है। आप खुद ही हिसाब लगा ले कि तो ये अच्छा, थोड़ी सी आम आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी की, जिस जो 10-15 हजार रुपए जिसकी महीने की जो इनकम है, तो वो किस तरह फिर ये जिंदगी गुजार रहा है सर? यकीन करें, अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द मोहल्ले वकू में लोगों को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि चले ठीक है, हमारा तो चल रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन जब साइड पे लोगों को देखते हैं तो बड़ा दिल हर्ट होता है कि अल्लाह हम किस कंट्री में पैदा हो गए हैं। लोग बेचारे 50-50 रुपए का घी लेके जाते हैं, 20-20 रुपए की चीनी लेके जाते हैं, 30-40 रुपए का दूध लेके जाते हैं चाय बनाने के लिए। ऐसे लोगों के हालात कर दिए हुए हैं इन हुकूमतों ने। अच्छा, 50 रुपए का आपने घी बताया, तो वो कितनी देर चलता होगा वैसे? मेरे ख्याल से तो उसकी तो एक हांडी भी नहीं, एक टाइम की हांडी भी नहीं बनती होगी घर की, किचन की। अच्छा, अब एक दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अवाम भी कह रही है, सियासतदान भी, मौलवी भी, सारे कह रहे कि हम पाकिस्तान के लिए बड़ी जी खिदमत कर रहे हैं और वक़्त निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब खिदमत कोई नहीं हो रही, सब दाद दप्पा चल रहा वहां पे। चले, आप मीडिया के आदमी हैं, मीडिया के बंदे हैं, आप हमारे से ज्यादा आपके सामने सारी खबरें आती है। आप मुझे बता दे, आपको कोई चेंजिंग नजर आई हो, किसी आलम में चेंजिंग नजर आई हो, किसी यानी कि आप सियासतदान का बता दे कि उसने कोई नेक काम किया हो, आप हमें बता दे अगर आपने कुछ देखा हो। आप तो हालांकि मीडिया के बंदे हैं, कुछ भी नहीं, ये नाअहल हैं, बिल्कुल ही निकम्मे हैं ये लोग, निकम्मे। अच्छा, एक और जो चीज वहां पे देखने में आई कि लोग, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, हमने एक नंबर दिया हुआ ऊपर, वहां पे मैसेज लिखते हैं कि पाकिस्तान में जितने मैसेज मुझे आते हैं उनमें से ज्यादा जो आप कह लें कि उनकी ये ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, हमें यूरोप का किसी तरह वीजा मिल जाए, हम यूरोप में पहुंच जाएं। इसकी वजह यही है कि यहाँ के हालात से तंग आए हुए हैं लोग। हाँ जी, सिर्फ हालात से तंग आने की वजह से लोग जाते हैं। वैसे लोगों को क्या जाने की जरूरत है यूरोप जाने की या कहीं और भी जाने की। इन लोगों की वजह से, हालात की वजह से, महंगाई इन लोगों ने इतनी कर दी हुई है, कारोबार बर्बाद कर दिए हुए हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मेरा इधर एक बिजनेस है खुद का, ठीक है। तो तकरीबन 4 से 5 दिन पहले एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, रैंक ऑफिसर मेरी शॉप पे आया, तो बैठा हुआ था, किसी काम से आया, तो उसके सामने कोविड के बारे में बातें शुरू होगी। तो उसने एक बात हमें कही, उसने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ना, मैं इस बात को नया कुरान को हाजिर नाजर जान के एक बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब ये कोविड के लिए उन्होंने यानी कि करंटीना सेंटर बनाए हुए थे ना हुकूमतों ने, तो उसी वक्त अमेरिका से कॉल आई है कि अमेरिका एड नहीं भेज रहा पाकिस्तान को, ठीक है। कॉल आते ही इस्लामाबाद उसी वक्त इन्होंने ना पूरे मुल्क में वायरलेस चला दी थी
कि पूरे मुल्क से करंटीना सेंटर खत्म कर दिए जाएं उसी वक्त। इसका मतलब कि ताकि अमेरिका पैसे भेजे तो दोबारा हम बनाएं। हाँ नहीं, अमेरिका पैसे, यानी कि इन लोगों ने ये ड्रामा बनाया हुआ सर कि यानी कि ठीक है हम मानते हैं बीमारी है, लेकिन जिस हद तक ये कह रही है देखें जी रात को 8 बजे दुकानें बंद कर दें, ठीक है 10 बजे बंद नहीं करनी, तो क्या अगले 2 घंटों में कोरोना आना होता है, या हफ्ते वाले दिन छुट्टी करें तो बाकी 5 दिन। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की कि हफ्ते को दुकानें बंद कर दे तो हफ्ते को कोरोना आया ना, दूसरे दिनों में जो मर्जी होता रहे। हाँ, या जिस तरह कोई कोरोना कोई स्टूडेंट है कि उसने फलां दिन आना, 5 दिन उसने छुट्टी करनी है। ये किस तरह के फैसले ये करते हैं, कुछ समझ आती है? यही तो हमारी आपको बताया ना, ये सिर्फ दूसरे मुल्कों से एड लेते हैं, एड लेके वो गरीबों में बांटी नहीं जाती। वो इन सियासतदानों के आप घर जाके देखे, आप लोग परेशान हो जाए कि पाकिस्तान में सियासतदानों के घर जो है 50-50 कनाल में एक बंदे का घर बना हुआ है। अच्छा, ये आपने बड़ी एक अहम बात की, मैंने भी वहाँ फार्म हाउस देखे। ये लोग क्या, इन लोगों को इतने बड़े घरों में ये करते क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि हमारी तकरीबन सारी तकरीबन 150 से 200 घर है इस्लामाबाद में, फैमिली के रिलेटिव जितने भी हैं, मेरी सिस्टर वगैरह सभी लोग फैमिली के ना इस्लामाबाद ही रहते हैं। तो तकरीबन सारी जिंदगी हमारी ना हर साल में तकरीबन 2-2.5 महीने हम इस्लामाबाद रह के आते होते। तो उधर हमारे फैमिली के रिलेटिव के पास ही ना इनके काफी लोगों के अमीन फहीम जो फोत हो गए हैं पीपल्स पार्टी के, उनके उसके अलावा काफी लोगों के फार्म हाउस है। तो वो फार्म हाउस यकीन करें आप 50-50 कनाल के अंदर फार्म हाउस बने हुए हैं, अंदर ही सब्जियां लगी हुई हैं, गार्डन बने हुए हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं। अच्छा, आपने वो क्या नाम लिया, अमीन फहीम, उसके अकाउंट में भी किसी ने पता नहीं 25 करोड़ डाल दिए थे कि कितने डाल दिए थे, उसको भी पता नहीं चला था ना? हाँ जी, डेथ हो गई हुई है उनकी। तो चलो डेथ होगी तो फिर कहते जी अगर कोई मार जाए तो उसके लिए अच्छी बातें करें, अगर अच्छी बातें ना हो उसके मतलब तो क्या करें फिर? क्या करें, बिल्कुल यही बात, अब खुद से तो नहीं कोई कर सकते। नहीं तो वो जो अगर वो 50 कनाल या 20 कनाल का घर खुद तो मार गया तो वो साथ तो लेके नहीं गया, तो इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं फिर। जी सब कुछ इधर ही रह गया, यही तो बात है, इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। इन लोगों ने जुल्म है, आपको यही तो कह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट हाउस में बैठने वाला अगर एक भी बख्शा गया तो समझे पूरा पाकिस्तान बख्शा जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे इनको कोई गरीबों का एहसास है, कोई गरीबों की फिक्र है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, एक और ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। जबरदस्त बातें ये हमारे दोस्त हैं और पाकिस्तान के मतलब बता रहे हैं कि क्या जिंदगी है वहाँ पे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है वो होते ही सच पे हैं। हमारा चैनल 9 News TV इंटरनेशनल, इसे सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं, साथ हमारी नशरियात मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी आप देख रहे हैं। लेते एक ब्रेक के बाद आपकी दोबारा हाजिर। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी दोबारा हाजिर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज मुबारक के साथ, और मेरे साथ एक दोस्त हैं पाकिस्तान से। अच्छा सर, ये बताइए कि एक चीज आजकल और बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि कुरान पाक की तालीम का मसला बना हुआ है। लोग उलमा के पास अपने बच्चों को भेज भी रहे हैं, कुछ जिनमें ये शऊर आ जाता है, जिनमें ये समझ आ जाती है, जो कुछ सोशल मीडिया पे देखते, तो फिर किस तरह अपने बच्चों को वो संभालते हैं, अपना ये उलमा से महफूज किस तरह रखते हैं वहां पे? सर बच्चों को संभालना तो चले एक अलग बात है, लेकिन ना असल पूछे ना अगर हमारे से, तो पाकिस्तान में कुरान की तालीम खत्म होती जा रही है। ठीक है, जो भी लोग है ना वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाएंगे कि हमने अपने बच्चों को बिकन हाउस स्कूल में डालना है, लाइट स्कूल में डालना है, फ्लास स्कूल में डालना है, जहां पर बच्चों की मंथली फीस जो है ना 15-15, 20-20 हजार रुपए है। ठीक है, तो कुरान पाक भरने ये बच्चों को भेजते ही नहीं है। अगर कोई कारी इन्होंने लगाना ना कि जो अल्लाह ताला की तरफ से किताब उतरी है जिसने हमारे काम आना है, ठीक है, आगे जाके हमारे से अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछा कि आपने मैट्रिक किया है कि बीकॉम किया है कि एमएससी की है। ठीक है, सबसे पहले नमाज का सवाल होना है, कुरान पाक की तालीमात पूछी जानी है। इस बारे में हमारे आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना उसको पता ही नहीं है। पहले कभी हमारे गली मोहल्लों में होता था कि सुबह के टाइम ना
मस्जिद में माँ बाप उठाते थे, साथ खुद नमाज पढ़ते थे, साथ हमें लेके जाते थे नमाज पढ़नी, साथ कुरान पाक की तालीम हासिल करनी। ठीक है, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। आपको बताया कि सुबह मस्जिद में फजर के टाइम तकरीबन 8 से 10 बंदे हर मस्जिद में होते हैं। अच्छा, तो बच्चों को तालीम हासिल करने का आना है। स्कूल की बात आपने की कि फीसें बहुत ज्यादा है, 15 से 20 हजार महीने की फीस है। एक हमारा वक्त था, उस वक्त ये प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, हम आम स्कूलों में पढ़े हुए हैं जो प्राइमरी स्कूल होते थे, और वो टाट पे भी बैठ के शुरू में हमने तालीम हासिल की। मगर आज 15-20 हजार रुपए देके भी लोगों का जो तलीमी म्यार है बच्चों का, वो तो बेड़ा गर्क हुआ है। हमारे पास लड़कियां काम करती हैं, कहती हम यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, उनको पाकिस्तान में उर्दू नहीं आती ठीक लिखनी ना पढ़नी। तो ये फिर इसका मतलब ये एक माफिया है जो सिर्फ पैसे बटोर रही है। हाँ, माफिया। ये तलीम के पीछे भी ये तकरीबन जो बड़े लोग हैं मुल्क के, कुछ सियासतदान इसमें इन्वॉल्व है। इन लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं जिधर लोग तकरीबन जो है 1 या 2 ईयर की फीस लोग लाखों में पे करते हैं। ठीक है, उधर होता है क्या है कि कोई अगर नालायक है, कोई लायक है, जो लायक है उसको 6 नंबरों में पास कर दिया जाता है, उसको पोजीशनें दी जाती है। जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, जिससे उर्दू भी नहीं लिखनी आती ना पढ़ी जाती है, ये लोग उनको भी पास करके तो डिग्री दे देते हैं। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब बात है कि उनको भी पास करके वो डिग्री दे देते हैं। तो ये बाद में तो उनको मुसीबत तो ये है कि वो फिर किस तरह जिंदगी आगे। अच्छा, उनमें से एक मुझे एक दफा मिले तो कहने लगे उनको खुद वो कोई बात हुई तो बड़ी कमजोर थी उनकी उर्दू वगैरह, तो मैंने कहा आप क्या करते थे वहां? तो ये भी सोशल मीडिया से, मैं आपको बिल्कुल सही कहती खतून थी, कहती मैं वहां पे टीचर हूँ। एक पाकिस्तान एक प्रोग्राम लगता है जीतो पाकिस्तान, ठीक है, उसमें ये मैंने देखा था। तो कहती कि मैं टीचर हूँ। तो वो बंदा जो वो क्या नाम है उसका जो प्रोग्राम करता है, उसने कानों को हाथ लगा लिया कि अगर आप टीचर हैं तो बेड़ा ही गरेगा है। तो यही आपको बता रहा हूँ कि ये माफिया सारे एक, यानी कि जो लोग, यानी कि ये प्राइवेट बहुत ज्यादा कॉलेज बन गए हुए हैं। तकरीबन ज्यादातर लोग प्राइवेट, जी ये फलां गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये पंजाब कॉलेज है, ये सब माफिया है। ठीक है, ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए सालाना लोगों से बटोर लेते हैं, उनके बच्चे पास हो जाते हैं। लोगों को तो सही पूछे तो कईयों को तो उर्दू भी नहीं बोलनी आती। अच्छा, तो गरीबों के बच्चे अभी भी वहां पे हैं स्कूल जो सरकारी, वहां पे आपने देखा कि कभी किसी सरकारी स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? सर, हम खुद तकरीबन गवर्नमेंट स्कूलों में स्टडी की हुई है। मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, फर्स्ट ईयर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। सब लोग कॉलेज से, यानी कि सब लोग, यानी कि हम तकरीबन सब बहन भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो नहीं, अब कभी इत्तेफाक हुआ किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाने का? अब तो लोग उसका नाम भी नहीं लेते। अब तो गवर्नमेंट स्कूलों को वो ही लोग जाते हैं कि जो बेचारे यानी कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फीस नहीं दे सकते मंथली, वो ही लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। वैसे तो खत्म हो चुका है रिवाज पाकिस्तान के अंदर के कोई गवर्नमेंट स्कूल में, अगर कोई मोहल्ले का बच्चा को गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो लोग उसको हकारत की नजर से देखते हैं। अच्छा, ये भी एक मसला इसका मतलब बन चुका है कि एहसास कमतरी का शिकार वो बच्चे इस तरह फिर हो जाते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, ये प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा इशू मानता जा रहा है कि जिस तरह अमीर गरीब का फर्क बहुत तेजी के साथ सामने आ रहा है, अब बच्चों का भी यही हालात सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, यही मसला है। यानी कि ना लोगों ना, यानी कि जो बच्चा किसी का गरीब का जाता है ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो लोग उसको अच्छा फील नहीं समझते, उसको बुरी नजर से देखते हैं कि अनपढ़ जाहल, इन्होंने की पढ़ना लिखना, पंजाबी में यानी इसको इधर कहते हैं इन्होंने की पढ़ना लिखना वे, इन्होंने काम ही करना है होर चाहूं 50 साल हो, इस तरह बोलते हैं लोग। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान रबुआ हाई स्कूल जाता था तो वहां पे एक लाली एक फैमिली है, वो काफी देर से ये लालियां के पास हैं, तो वो काफी देर से पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, MNA ये वो बनते रहते हैं। तो उनके बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते थे और वही उसी स्कूल में वो पढ़े हुए हैं वो भी ना। आज मेरा ख्याल उनमें भी कोई MNA बना होगा कोई। तो उस वक्त प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। तो अब जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल आपने देखा हर जगह पे मौजूद है, किसी भी शहर चले जाए तो नॉर्मल तो होना यही चाहिए था कि तालीम का म्यार बहुत बुलंद हो जाना चाहिए था ना।
जी बिल्कुल। मगर क्या वजह हुई यार बुलंद नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों ने भी जिस तरह मजहब को भी कारोबार बनाया हुआ है और जिस तरह इन्होंने मजहब को कारोबार बनाया हुआ, सर बेचा हुआ, इसी तरह इन्होंने ना तलीम को भी बिजनेस बना लिया हुआ। तलीम नहीं है, ये बिजनेस अदारे हैं, इसको बिजनेस अदारे। आप पाकिस्तान में कोई भी अच्छा स्कूल बना लें, ठीक है, कॉलेज बना लें, ठीक है, प्राइवेट, तो उधर सहूलतें दें, तो आपका ये बिजनेस चल गया, सारी जिंदगी के लिए आपका बिजनेस चलता रहेगा। ये बिजनेस है। अच्छा, यूरोप में भी प्राइवेट स्कूल है, ये नहीं कि यूरोप में नहीं है, काफी महंगे महंगे स्कूल हैं यहाँ पे, मगर जो आम स्कूल है उनकी जिंदगी, उनकी जो तलीम का म्यार है वो भी बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। ये इन्होंने तलीम पे बहुत ज्यादा अखराजात करते हैं। उसकी एक मिसाल मैं कई दफा दे चुका हूँ कि जर्मनी की जो वजीर आजम है उसने टीचर जो थे उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़ा दी ना। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हम उनसे ज्यादा तलीम याफ्ता हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे। तो उन्होंने कहा आप लोगों को इन्होंने तलीम दिलवाई है, आपने खुद नहीं ली, टीचर आपको तलीम देता है, तो हम इसका म्यार बुलंद रखना चाहते हैं टीचर का ना। अच्छा, बिल्कुल बेजारी बात है। मौसम होता है तकरीबन बाप के बराबर दर्जा टीचर का, जिन्होंने हजरत अली नहीं फरमाते, जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। अच्छा, अब ये जो चीजें देखते हैं आप पाकिस्तान में कि वहां भी टीचर हैं, लेकिन मैं जर्मनी की मिसाल इसलिए दी कि अगर ये यूरोप के ममालिक में स्कूल आप देखें तो बच्चों पे भी इनकी नजर होती है, बच्चों के वालिदैन से भी राब्ते में रहते हैं, और जब ये वहां पढ़ाने के लिए आते हैं तो सिर्फ वही काम करते हैं जिस काम के लिए आए होते हैं। हमारे वहां पे मैंने देखा, एक दिन मैं किसी जगह से गुजर रहा था तो बच्चे पढ़ रहे थे, तो जो हमारे वहाँ पढ़ाने वाले थे मैं उन पर गौर किया तो वो अपने मोबाइल के साथ लगे हुए थे, किसी और ही दुनिया में बैठे हुए थे। उनको पता ही नहीं था कि बच्चे कर क्या रहे हैं ना। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हालांकि ड्यूटी के वक्त आप देखें कि आप जिस काम के लिए हैं वो काम करना चाहिए आपको। नाज़रीन, आज ये आम एक शहरी पाकिस्तानी हमारे थे पाकिस्तान से, उनसे हमने बातचीत की, उनसे हमने पूछा कि वहाँ की जिंदगी में क्या कोई तब्दीली आ रही। अच्छा, आखिर में बताएंगे कि इमरान खान रोजाना तकरीर करता है, टेलीफोन कॉल लेता है, तकदीर बदल रहा है, लोगों की किस्मतें बदल रहा है, दूध और शहद की नहरें अनकरीब वहां आपको नजर आएंगी, आपको वहां मेवाजात नजर आएंगे। तो कोई इस तरह की असरात नजर आए? कोई पहले जैसे बारिश आती है तो पहले बादल आते हैं, पता चलता है कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है, कोई बादल शादल आए? हाँ जी बिल्कुल। तो कोई मैं सर बेसिकली खुद इमरान खान साहब का ना बहुत बड़ा फैन था। नहीं, वो तो बहुत बड़े लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं ना जी। लेकिन अब मेरा ना दिल उनकी वजह से ना काफी हर्ट हो चुका हूँ मैं उनसे, क्योंकि कोई कारकर्दगी नजर ही नहीं आ रही। 3 साल हो चुके हैं, सिवाय महंगाई के इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा। बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है। अच्छा, आपके ख्याल में कुछ पुलिस, आप बताएं जरा, पुलिस कुछ बेहतर हुई है वहां पे? कोई अखलाकी तौर पे कोई तमीज तहजीब के साथ लोगों से अब बात करना शुरू कर दी उसने? बिल्कुल ही नहीं, सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये आपको किसी ने अगर कहा है तो ये झूठ है। पुलिस वालों की तकरीबन इधर लोगों के साथ अगर कोई गरीब आदमी है तो इतनी गंदी लैंग्वेज होती है, गाली के अलावा तो ये बुलाते ही नहीं है ना किसी को। अच्छा नाज़रीन, आज प्रोग्राम काफी लंबा हुआ क्योंकि अहम मसले थे कुछ। मैंने कहा पता करे पाकिस्तान में भी क्या चल रहा है, तो इंशाल्लाह कल फिर एक नया प्रोग्राम लेके आएंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया, फिर भी आपके साथ प्रोग्राम करते रहेंगे, तो बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने साथ प्रोग्राम में लिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, ये पाकिस्तान से एक दोस्त थे, अहमदी नहीं है, ये गैर जमात है, ये हमें इसी तरह इन्होंने राब्ता कायम किया था। मैंने कहा इनके साथ प्रोग्राम करें। आप देखते हैं कि जो लोग सच बोलते हैं, हकीकत को जानते हैं, वो आके मीडिया पे भी सच्ची बातें करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल सच बताया कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, दिन ब दिन हालात खराब हो रहे। तो हमारे जो चैनल है इसका मकसद भी यही होता है कि सिर्फ सच आपके सामने लेके आए। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम में, जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।